Hello everybody, welcome to Glorious Classes. I'm Shruti Mishra and I was teaching you first chapter of your economics book. The chapter's name is Story of Village Palampur. We have done first half of the chapter in the first part of this video. This is the second part, and in this video we will be starting from the third point, will the land sustain? Let's just revise and recapitulate what we had studied in that video so that it will be easy for you to understand when we continue with the chapter further. So that day we were discussing about uh, an imaginative village, Palampur. This chapter tells the story of an imaginative village, Palampur, which is very much alike villages that we find in Western Uttar Pradesh, Punjab, and Haryana. Okay, so what was so peculiar feature about this village, or what is the feature that makes it different from other villages in India, is that villages in this region, and particularly this village of Palampur, adopted all the methods of green revolution. They started using HYV seeds, pesticides, chemical fertilizers, and modern irrigation system. So these all combined to produce heavy amount of yield for the farmers. The same land started giving more amount of crops, and they had surplus amount to sell it in the market. So this is what basically we were discussing in the last video. So we saw how they organized production, what were the factors of production, and then we saw how farming was one of the main occupation of the people of this village, Palampur, and how farming was done. So first factor for the farming was that land was fixed, land could not be expanded, and they had used whatever land they could for cultivation till the year 19. So tell me, what was the year? It was 1960. Till 1960 they had brought all the land under cultivation, whatever they could in that village. So no more land was available. Now the second thing that we saw, that how to grow more from the same land when you cannot expand the land. So the other option that you're left with is that from the same land you have to grow more crops so that you can get more financial benefit. So they started multi-cropping, and they also adopted all the processes involved in green revolution. So we saw what were the things that green revolution brought with it, all different and modern farming methods that used HYV seeds, chemical fertilizers, um, irrigation sources that were not dependent upon rainfall, direct rainfall. So these all things, and machineries, different machineries like tractors, threshers. So all these things brought more and surplus yield for the village of these people. Okay, so we had discussed two of the factors of farming for this village. Now we'll from today we'll discuss, after all these modern methods were applied to the farmlands, now what will happen to the land? The third point, that is, will the land sustain? अब ये सारी चीजें जो भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, केमिकल्स यूज करना फील्ड्स में, ये सारी चीजें थी, अब क्या फार्म्स के लैंड उसको झेल पाएंगे? क्योंकि लैंड जो है वो नेचुरल रिसोर्स है, अब उसके ऊपर जब आप केमिकल्स यूज कर रहे हो तो उन केमिकल्स का लैंड पे क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, या जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसका क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा. So now let's also discuss what was green revolution and what it brought for the whole country. तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक आइडिया था, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आता है कि इट वाज अ रेवोल्यूशन, इट वाज काइंड ऑफ अ मूवमेंट. तो ये एक आइडिया था जिससे कि इंडिया में जितने भी फार्मलैंड्स थे उनसे उनको तो बढ़ाया नहीं जा सकता था.
जैसे इस विलेज का एग्जाम्पल है कि जितने भी लैंड्स थे जो भी एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज करने चाहिए थे वो सारे लैंड्स एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज किए जा रहे थे। लेकिन अब बात ये आ रही थी कि लैंड तो आप नहीं बढ़ा सकते हो, लेकिन जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो जब पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें अनाज भी चाहिए। तो ये अनाज हम कहाँ से लाएंगे? हम सेम लैंड से ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और इसी के लिए साइंटिस्ट्स ने डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई किया मेथड्स ऑफ फार्मिंग में। जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग थे उनको चेंज करके साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा नया इनोवेटिव तरीका बनाया जिससे कि सेम लैंड अब ज्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस करे। इसी प्रोसेस को, ये जो रेवोल्यूशन आया 1960s में, इसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। एंड आपके नोट के लिए आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए कौन थे, कौन इंसान थे, कौन से साइंटिस्ट थे इस ग्रीन रेवोल्यूशन के पीछे। उनका नाम था MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन थे जो मेजर, जिनका ब्रेन था इस ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने के पीछे। ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे पहले HYV सीड्स बनाए गए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो ज्यादा क्रॉप प्रोड्यूस करते थे। इरिगेशन सिस्टम को सुधारा गया। पहले जो इरिगेशन सिस्टम सिर्फ रेनफॉल पे बेस्ड था इंडिया में, अगर बारिश होगी और टाइम पर होगी तभी जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे होंगे और सफिशिएंट होंगे। उसको चेंज करके इरिगेशन सिस्टम लाया गया। मतलब आप जमीन से पानी निकालकर रिवर्स के पानी को डिफरेंट डिफरेंट वेज में चैनलाइज करके आप खेतों तक पहुंचाते हो। ये सारे डैम्स बनाकर डिफरेंट वेज से खेतों तक पानी की सुविधा को पहुंचाने का डिसीजन लिया गया। और ये एक मेजर चेंज था फार्मिंग मेथड में जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर आया, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर आया। फिर क्या था, जो फर्टिलाइजर्स जो यूज होते थे, जो खाद जो यूज होता था, वो पहले हमेशा ऑर्गेनिक खाद यूज होता था। अब उसको चेंज करके केमिकल लाया गया। केमिकल्स को आप अपने खेतों में डालोगे और उससे जो प्लांट है वो ज्यादा ग्रो करेंगे। ये 3 चीजें आई और उसके बाद मशीन्स को लाया गया जो बड़े बड़े फार्म्स को कल्टीवेट करने में, उसको खेत को जोतने में और कटाई, फसल की कटाई करने में, ये सब में हेल्प करते थे, जैसे कि ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स। ठीक है, तो अब हमें देखना है इस थर्ड पॉइंट में कि ये सारी चीजें जो लैंड के ऊपर अप्लाई की जा रही थी ग्रीन रेवोल्यूशन में, उनका क्या इफेक्ट हो रहा था लैंड पर। ठीक है, अब क्या पता चलता है कि जो लैंड जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, वो मैन मेड नहीं है, वो नेचुरल रिसोर्स है और उसको हमें केयरफुली यूज करना चाहिए। किसी भी नेचुरल रिसोर्स को अगर आप केयरफुली नहीं यूज करते हो, ब्लाइंडली यूज करते हो, अंधाधुंध उसको यूज करते हो आप इनडिस्क्रिमिनेटली, तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा और वो वैसा आपके काम के लायक नहीं रहेगा जैसा वो इतने हजारों लाखों सालों से है। तो अब ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का क्या इम्पैक्ट हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन का ये इम्पैक्ट हुआ कि लॉस, सॉइल जो है वो अपना फर्टिलिटी खोने लगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने की वजह से सॉइल का जो फर्टिलिटी था, इंडिया का जो सॉइल है वो शायद किसी को पता भी नहीं है कि कितने हजारों साल से उस पर खेती की जा रही है। कब से इंडिया में लोग सेटल्ड इरिगेशन कर रहे हैं, एक जगह पे सेटल होकर खेती कर रहे हैं, ये शायद किसी को भी पता नहीं है अभी तक ठीक ठीक। तो यही सॉइल जो इतने हजारों साल से प्रोडक्टिव था, फर्टाइल था, हमेशा यूज करने लायक था, वो अब अपनी फर्टिलिटी खो रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन में केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने की वजह से। और क्या हो रहा था, अब ग्राउंड वाटर को हमेशा निकाला जा रहा था ट्यूबवेल से इरिगेशन के लिए, तो जो वाटर टेबल है वो डिप्लीट हो रहा था। मतलब जो अंडरग्राउंड हमारा वाटर रिजर्वॉयर है वो खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, ओवर इरिगेशन में ओवर यूसेज के कारण। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी, अंडरग्राउंड वाटर, ये सब जो है वो बहुत बहुत सालों में इकट्ठा होते हैं। वो आप तुरंत उसको रिप्लेनिश नहीं कर सकते। वो रिप्लेनिशेबल तो है लेकिन आप उनको तुरंत वापस नहीं ला सकते, उनको इकट्ठा होने में टाइम लगता है। तो एक बार अगर आप उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो ओवर यूज करके, तो उसको रिस्टोर करना बहुत मुश्किल है। वो रिस्टोर तो होगा बट उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर उतने दिनों तक आप क्या करो,
और ह्यूमन पॉपुलेशन हमारा जो है वो इंडिया में, आपको पता होगा कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। तो अगर इतनी बड़े पॉपुलेशन को खिलाना है, पानी चाहिए, तो जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कभी भी एक दिन के लिए भी नहीं रुक सकता। अभी लॉकडाउन के भी सिचुएशन में लॉकडाउन को क्यों खोलना पड़ा? इसीलिए खोलना पड़ा ताकि जो फार्म का जो प्रोड्यूस है वो बर्बाद ना जाए, और जो लोग मार्केट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, जो लोग फार्मर्स नहीं हैं, वो कहाँ से खाना खाएंगे? तो लोग भूखे ना मरे, इस चीज को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन को खोलना पड़ा। कोरोना वायरस का इतना बड़ा रिस्क कवर करते हुए भी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को खोला, क्योंकि हमें अपना फूड सप्लाई जो है उसको मेंटेन करना है। हमारा फूड रिजर्व अगर मेंटेन नहीं रहेगा तो इंडिया का जो आधा से ज्यादा पॉपुलेशन है वो ऐसे ही भूख मर जाएगा। इंडिया के पास इतना फंड भी नहीं है कि इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए हम फूड दूसरे फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट कर सकें। और ये भी एक सच्चाई है कि जब तक ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में नहीं आया था, तब तक जो हमारा फार्म प्रोड्यूस था वो इतना कम था कि पूरे पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट नहीं होता था। हमें वीट, स्पेशली वीट इंपोर्ट करना पड़ता था अमेरिका से, और इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट था वो सबसे बड़ा रीजन उसका फूड ग्रेन का इंपोर्ट था। तो ये इन सारी चीज़ों से इकोनॉमिक टर्म्स भी बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिक टर्म्स रिलेटेड है, जो आप आगे पढ़ोगे किस तरह से हमारी इकोनॉमी कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गई थी एक टाइम पर, और फिर 1991 में 1990 से 91 के बीच में नई इकोनॉमिक पॉलिसी को लाना पड़ा। ये सब चीज़ आप धीरे धीरे पढ़ोगे, ये सब हम डेफिनेटली आगे डिस्कस करेंगे, बट दीज ऑल थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। देखिए, आप सोशल स्टडीज पढ़ने में कोई भी सब्जेक्ट आप ये नहीं सोच सकते हो कि मैंने ये हिस्ट्री में पढ़ा तो ये हिस्ट्री में ही रह जाएगा। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सब चीज़ को आप कोरिलेट जब तक नहीं करोगे, आपको जो फुल पिक्चर है वो समझ में नहीं आएगा कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, और उसका इम्पैक्ट क्यों क्या हुआ। ठीक है। अब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो और क्या करता है? केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो, जब आप खेतों में फर्टिलाइजर्स डालते हो और फिर इरिगेशन के लिए पानी डालते हो, तो वो पानी बहकर कहीं ना कहीं तो जाता है, या फिर उस पानी में वो केमिकल्स डिसॉल्व हो जाते हैं। अब वो डिसॉल्व्ड केमिकल्स जो हैं वो फर्स्ट तो सॉइल के सैलिनिटी को बढ़ाते हैं, मतलब उसको एसिडिक बनाते हैं सॉइल को, और वो जो डिपॉजिट्स हैं खेत से निकल के, जो केमिकल डिपॉजिट्स हो रहे हैं जो बह के किसी ना किसी, अगर सरफेस वाटर सोर्स में जा रहे हैं तो उस वाटर बॉडी को पॉल्यूट कर रहे हैं, अगर ग्राउंड में अब्जॉर्ब हो रहे हैं तो अंडरग्राउंड वाटर्स को भी पॉल्यूट कर रहे हैं। अगर आप पेपर पढ़ते हो, अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, तो बिहार के बहुत सारी एरियाज हैं जो जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर काफी ज्यादा पॉल्यूटेड है, और अगर आप अपने हैंडपंप से भी पानी निकालते हो या कुआं से पानी निकालते हो तो वो पीने लायक नहीं होता, दैट इज अनफिट फॉर कंजम्पशन। लेड का पॉल्यूशन, मर्क्यूरी का पॉल्यूशन, आर्सेनिक का पॉल्यूशन, ये सारा पॉल्यूशन अंडरग्राउंड वाटर में बिहार में बहुत ज्यादा इसका प्रॉब्लम है। और ये सब मेनली क्यों है? ये सब खेत में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होने लगे उसकी वजह से है। ये जो पिक्चर है ये डिपिक्शन है कि कल्टीवेटेड लैंड कैसा था पालमपुर में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को दिखाते हैं। तो अब हमें फ्यूचर को देखते हुए, और फ्यूचर में भी लैंड अवेलेबल हो उसको देखने के लिए, सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स की यूसेज को कम करना होगा। बट जैसा आप राइट हैंड साइड में जो बॉक्स है उसमें देख रहे हो, पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब ऐसा स्टेट है हमारे कंट्री का जहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा यूज किए गए, और वहाँ पे सॉइल अब इतना ज्यादा डिग्रेड हो चुका है, इतना उसकी फर्टिलिटी खराब हो चुकी है सॉइल की,
कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करना पड़ता है ताकि उनको अपने खेतों से वही सेम प्रोड्यूस मिले, वही सेम यील्ड मिले जो पहले मिल रहा था। और फिर ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है ये हमारे फूड चेन में एंटर करते हैं, और फूड चेन को, हमारा जो फूड चेन है वो फिर प्लांट्स को वेजिटेरियन या ग्रास ईटिंग एनिमल्स खाते हैं, फिर वैसे एनिमल्स को, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं, और कार्निवोर्स को या फिर उस प्लांट को, ह्यूमन बीइंग प्लांट्स को डायरेक्ट भी कंज्यूम करते हैं और एनिमल्स के थ्रू भी कंज्यूम करते हैं। तो सारे पूरे फूड चेन में, पूरे प्रोसेस में केमिकल्स, इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स पूरे फूड चेन में इस तरह से मिल गए हैं कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा और बहुत बुरा इम्पैक्ट हो रहा है। इन सब चीज़ों को जब ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था तब इन सब चीज़ों को फोर्सी नहीं किया गया था, जो अब इतने सालों के बाद 1960 कब हुआ था और अभी जो 2000s चल रहा है उसमें अब इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। फोर्थ पॉइंट देखिए, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अब जो लैंड है पालमपुर में वो वहाँ के फार्मर्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमने ये तो देख लिया कि लैंड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एसेट है फार्मिंग का, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को एग्रीकल्चर के लिए सफिशिएंट लैंड हो। जितने लैंड से प्रोड्यूस से उसके लिए सफिशिएंट हो, ज़रूरी नहीं है उसका पास उतना लैंड हो उस फार्मर के पास। तो 450 फैमिलीज जो हैं वो 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। 450 फैमिलीज टोटल है जिसमें से 1/3 लैंडलेस है, मतलब 150 फैमिलीज के पास कोई लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग दूसरे फैमिलीज के लैंड पर जाकर काम करेंगे। Of the remaining families who own land, 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size. अब 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास लैंड है लेकिन स्मॉल लैंड है, लैंड का एरिया बहुत कम है, 2 हेक्टेयर से भी छोटा है। तो वैसे कम जगह में खेती करने से आपको ज्यादा इनकम नहीं आएगा। On the other hand, more than half of the area of the village is covered by plots that are quite large in size. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. अब जो बाकी जो 60 families हैं, उनके पास बड़े-बड़े लैंड हैं और उनके लैंड इतने बड़े हैं कि कुछ-कुछ 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा बड़े हैं, और इनके पास, ये लोग काफ़ी रिच हैं और उनके पास सफिशिएंट इनकम है। ये जो हमने देखा था, ये पिक्चर, ये लैंड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सारे छोटे प्लॉट्स हैं, इधर उधर सब छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, फिर कुछ प्लॉट्स आप देख सकते हो कितने बड़े हैं। तो इसी तरह से लैंड जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली के बीच में डिफरेंटली डिवाइडेड है। ये जो पूरा सीन है ये मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग है, ट्रैक्टर से। ये ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है, बुल्स को यूज करके। ये इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स स्प्रे करने का है, ये फसल काटने का है। अलग अलग पिक्चर्स अलग अलग चीजों को डिपिक्ट करता है। अब फिफ्थ पॉइंट आता है कि लेबर कौन प्रोवाइड करेगा। अब लैंड हमने देख लिया, लैंड का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या कंडीशन है, यील्ड कैसे बढ़ाया जाए, सारा चीज हमने देख लिया। तो अब जो लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, उसमें जो लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है लेबर। अब लेबर कौन प्रोवाइड करेगा। फार्मिंग में सबको पता है कि उसमें हार्डवर्क बहुत ज़्यादा चाहिए, सारे काम आप मशीन से नहीं कर सकते, बहुत सारे काम को आपको हाथ से भी करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको आदमी चाहिए। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनका लैंड स्मॉल है, तो वो ठीक है, अपने फैमिलीज को यूटिलाइज करके अपना काम खुद कर सकते हैं। लेकिन जो मीडियम या लार्ज फार्मर्स हैं जिनके फील्ड्स काफ़ी बड़े हैं, वो सारा काम खुद नहीं कर सकते, तो वो लेबरर्स को हायर करते हैं अपने फील्ड पर काम करने के लिए।
farm laborers come either from landless families or families cultivating small plots of land. अब ये laborers कहाँ से आते हैं? मैंने जैसे आपको पहले बताया, जो लैंडलेस हैं, जिनके पास लैंड नहीं है, वो इन बड़े फार्म्स पे जाके काम करते हैं, या फिर जिनके फार्म्स छोटे हैं वो अपना काम खत्म करके और टाइम बचा सकते हैं और कमाना चाहते हैं, वो जाके दूसरे के फार्म्स पे, जिनके फार्म्स बड़े हैं, उन पर काम करते हैं। तो इस तरह से लेबर मिलता है। तो इन लोगों को अपना लेबर देने के उसमें क्या मिलता है? वेजेस मिलता है। अब वेजेस जो है वो कैश भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है। कैश मतलब पैसा, रुपए के फॉर्म में, करेंसी नोट के फॉर्म में। काइंड मतलब किसी ना किसी सामान के फॉर्म में। तो यहाँ पे काइंड या सामान क्या मिलेगा? आप खेत पे काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको जो वहां पे अनाज पैदा हो रहा है उसमें से मिलेगा। और वेजेस जो है वो रीजन टू रीजन वैरी करता है, एक्टिविटी टू एक्टिविटी भी वैरी करता है। लेकिन अभी अभी नहीं, मतलब ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम से हमारे कंट्री में एक मिनिमम वेजेस एक्ट, एक लॉ है, जिसके तहत हर इंसान जो इतने फिक्स्ड आवर्स के लिए काम कर रहा है, उसको इतने फिक्स्ड, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है आवर्स और पैसे दोनों, उतना पे करना होता है लीगली। बट जनरली आपको पता है कि सब कुछ तो लॉ इन स्पिरिट फॉलो नहीं होता, तो लोग जितना काम करते हैं उसके हिसाब से उनका वेज तय होता है। अब डेली बेसिस पे भी वो लोग काम कर सकते हैं, मतलब आप एक दिन में जितना काम करते हो आपको उस दिन को उतने पैसे मिल जाते हैं, या फिर आप पूरे साल में जितना काम करते हो, पूरे महीने में जितना काम करते हो, उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। देखिए यहाँ पे वही सेम चीज लिखा हुआ है। एक किसान का एग्जाम्पल दिया हुआ है। डाला इज अ landless farm laborer who works on a daily wages in Palampur. This means he must regularly look for work. The minimum wages for a farm laborer set by the government is rupees 300 per day, but Dala gets only rupees 160. जैसे मैंने आपको बोला, मिनिमम वेजेस हर गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट सेट करती है, तो वहां पर 300 उसको मिलना चाहिए, बट उसको मिलता क्या है? 160 मिलता है। और वो डेली वेजेस में काम करता है, तो उसको हर दिन अगर साल के हर दिन अगर उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, तो जिस दिन उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा उस दिन वो बेचारा कुछ नहीं कमाएगा और कुछ नहीं खा पाएगा। और इतना ज्यादा कंपटीशन है, लोग ज्यादा है और उतना काम नहीं है, तो ऑब्वियसली जो काम देने वाला है वो बार्गेन करेगा, जो उसके लिए कम पे काम करेगा उसको ही वो काम देगा, और जो ज्यादा पैसे लेकर काम करना चाहता है उसको वो काम नहीं देगा। तो अगर आपको काम पाना है तो आप हमेशा आपको कम पैसे पे ही तैयार होना होगा। और ये लोग जो है वो विलेज के सबसे पुअर पीपल हैं। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब हमने ये भी देख लिया कि लेबर कहाँ से आ रहा है। अब बात आती है कि कैपिटल जो चाहिए फार्मिंग में वो कहाँ से आएगा। कैपिटल का मतलब पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो फार्मिंग को शुरू करने के लिए। तो अब जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है, जैसे मशीन्स चाहिए, सीड्स को खरीदने के लिए पैसे चाहिए, फर्स्ट फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनको खरीदने के लिए पैसे चाहिए, फिर आपका फार्म बड़ा है तो आपको लेबरर्स को देने के लिए पैसे चाहिए। तो ये सब पैसे कहाँ से आते हैं? जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो लोग पैसे किसी ना किसी से उधार लेते हैं, उससे अपना कैपिटल का इंतजाम करते हैं, या बड़े लार्ज फार्मर्स से उधार ले, या मनी लेंडर से, या ट्रेडर्स से ले, या बैंक से जाके ले। और अगर आप बैंक से लोन नहीं ले रहे हो, दूसरे जगह से लोन ले रहे हो, किसी और से बोरो कर रहे हो, तो जनरली उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई होता है, क्योंकि बैंक वही रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर सकता है जो गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है। तो ये सब जो स्मॉल फार्मर्स हैं, अब अगर उनके खेत पर अच्छी फसल नहीं होती है तो ऑब्वियसली वो लोग अपना लोन नहीं पे कर पाएंगे, और वो लोग हमेशा एक स्ट्रेस के अंदर रहते हैं कि लोन को किसी भी तरह से पे करना है। और जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं उनको, वो ऑलरेडी फार्मिंग से इतना पैसा कमाते हैं कि वो नेक्स्ट फार्मिंग के लिए अपना कैपिटल का इंतजाम कर सके और उसी पैसे से फिर दोबारा भी फार्मिंग कर सके। ठीक है, वो सेव करते हैं ताकि वो दोबारा भी फार्मिंग कर सके। अब हमने क्या देखा? अभी तक जो हमने स्टोरी पढ़ी, we have read about the three factors of production,
3 फैक्टर्स देखे हमने, लैंड के बारे में डिस्कस किया, लेबर के बारे में डिस्कस किया और कैपिटल के बारे में डिस्कस किया। ये सब फार्मिंग में किस तरह से यूज होते हैं। अब आपने क्या देखा कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लेबर है वो सबसे ज्यादा अबंडेंट है। अबंडेंट है मतलब बहुत ज्यादा है इन नंबर और इजीली अवेलेबल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया एक बहुत ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब 7th पार्ट जो है वो है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब फार्मर्स ने वीट उगाया, अच्छी फसल हो गई, सारे ग्रीन रेवोल्यूशन के सारे मॉडर्न मेथड्स भी यूज कर लिए। अब जब वीट हार्वेस्ट हो जाता है, मतलब कट जाता है, फसल कट जाता है और प्रोसेस पूरा हो जाता है, तब अब जितना फार्मर को अपने लिए नहीं चाहिए, जितना वो अपने घर में नहीं रखना चाहता, तो उसको वो ऑब्वियसली बेचेगा ताकि वो पैसे कमा सके। तो ये जो उसका सरप्लस प्रोड्यूस है, जो उसको घर में यूटिलाइज नहीं होगा, इसको ये सेल कैसे करेगा? तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास स्मॉल लैंड है, उनका प्रोडक्शन कम है, तो उनके पास सरप्लस बेचने के लिए भी काफी कम होता है। जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास काफी होता है मार्केट में जाकर बेचने के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं? The traders at the market buy the wheat and sell it further to shopkeepers in the towns and cities. ये लोग अपने गांव के पास, जो हमने पहले शुरुआत में पढ़ा था कि इनके गांव के पास जो मार्केट्स है, जो छोटा टाउन है, वहां पर जाके अपने व्हीट को बेचते हैं। वहां से जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, वो ले जाके शहर में उसको फर्दर बेचते हैं। अब एक फार्मर का एग्जांपल दिया गया, तेजपाल सिंह, जो कि एक लार्ज फार्मर है। उसके पास सरप्लस है 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट। क्विंटल का मतलब 100 केजी, तो 350 क्विंटल्स उसके पास व्हीट है। He sells the surplus wheat at रायगंज मार्केट एंड हैज गुड अर्निंग्स। अपने पास वाले मार्केट में जाके बेच कर आता है और उसके अर्निंग्स अच्छे होते हैं। अब लास्ट ईयर जो उसने वीट से कमाया था, उससे तेजपाल सिंह ने उस मनी को अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिया था। अब इसी सेंडिंग से वो स्मॉल फार्मर्स, जैसे अभी हमने पढ़ा, स्मॉल फार्मर्स को पैसे लोन पे देता है और उसी सेविंग से, जो बैंक में पैसे रखे हुए हैं, उससे वो नेक्स्ट जो भी क्रॉप लगाना है, फार्मिंग करना है, उसके लिए भी वो यूज करता है। इस बार उसने क्या प्लान किया कि वो एक नया ट्रैक्टर खरीदेगा, इससे उसका फिक्स्ड कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगा। तो लार्ज और मीडियम फार्मर्स जिनके पास पैसे हैं, वो अपना फिक्स कैपिटल भी बढ़ा सकते हैं, लोगों को लोन पे पैसे देके और अपना पैसा इंक्रीज कर सकते हैं, और उनके पास ऑलरेडी सेविंग्स होता है जो वो नए फार्मिंग के टाइम पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या क्या है पालमपुर में? ये सब अभी तक हमने जो देखा वो सब थे सारे प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स जो कि फार्मिंग में काम आ रहे थे, फार्मिंग से रिलेटेड थे। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या क्या है? अब ऐसे सिर्फ 25% लोग हैं पालमपुर में जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को यूज कर रहे हैं या फिर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं। बाकी सारे के सारे लोग फार्मिंग एक्टिविटीज में ही इन्वॉल्व हैं। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में ये लोग क्या करते हैं? पहला है डेयरी। डेयरी जो है, डेयरी का क्या मतलब है? आप सबको समझ में आता होगा डेयरी क्या है। डेयरी जो गाय भैंस रखकर दूध और दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनको हम डेयरी बोलते हैं। ठीक है, उस एक्टिविटी को हम डेयरी बोलते हैं। लोग अपने बफलोज को बहुत सारा ज्वार बाजरा ग्रासेस खिलाते हैं और मिल्क सोल्ड करते हैं, जाके सेल करते हैं राजगंज के मार्केट में। और रायगंज के मार्केट से मिल्क जो है वो टाउन्स और सिटीज में ट्रांसपोर्ट होता है। फिर एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। अब एक एक्टिविटी तो हो गई डेयरी, अब दूसरा जो एक्टिविटी है वो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। किसी भी चीज को बनाना लेकिन छोटे स्केल पे, बहुत ज्यादा बड़ा फैक्ट्री इंडस्ट्री जैसा नहीं, छोटे स्केल पे।
50 पीपल से भी कम पालमपुर में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के उसमें इन्वॉल्व हैं। Manufacturing takes place in big factories in the towns and cities. Manufacturing Palampur involves very simple production methods. जैसे मैंने अब आपको बताया कि आप इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के बारे में मत सोचिए जैसे टाउन्स और सिटीज में होते हैं, यहाँ पे सिंपल फॉर्म में मैन्युफैक्चरिंग होता है, घर में होता है या फील्ड में फैमिली लेबर के हेल्प से। Rarely are laborers hired. लेबरर्स को बाहर से हायर नहीं किया जाता, घर के लोग ही मिलके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बन जाते हैं। अब जो शॉपकीपर्स हैं, अब तीसरी कैटेगरी क्या है एक्टिविटी की, वो है शॉपकीपर्स, मतलब ऐसे लोग जो दुकान चलाते हैं। जनरल स्टोर्स होते हैं छोटे छोटे विलेज में जो पूरा किराना का सारा सामान बेचते हैं, और ये लोग किराना के साथ साथ नोटबुक्स, पेंसिल, मतलब आपके रोजमर्रा की लाइफ में जो भी छोटी मोटी चीजें जिनकी जरूरत होती है ये लोग सारी चीज बेचते हैं। Few of families whose houses are close to the bus stand have some used the part to open small shops. They sell eatables. अब बस स्टैंड के पास जिनके घर हैं वो लोग छोटे छोटे खाने पीने के दुकान भी खोल के रखे हैं। फिर अब जो फोर्थ टाइप ऑफ एक्टिविटी है वो है ट्रांसपोर्ट। कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्वॉल्व है, जैसे पालमपुर से रायगंज जाने वाले रोड पर रिक्शा वालाज हैं, तांगा वालाज हैं, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, बुलॉक कार्ट चलाने वाले, बग्गी चलाने वाले, ये सब तरह के लोग हैं जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, मतलब जो ट्रांसपोर्ट चला के ही अपना रोजगार चलाते हैं, कमाई करते हैं। ये लोग गुड्स और पीपल को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते हैं और उसके रिटर्न में पैसे लेते हैं। तो जो नंबर ऑफ पीपल ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हैं, ये लोग लास्ट सेवरल ईयर्स में काफी ज्यादा ग्रो कर गए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको अच्छे रोड्स चाहिए, और अच्छे रोड्स हैं इस विलेज में जैसे हमने पढ़ा था। और अब जो फार्मिंग का यहाँ का यील्ड है इस विलेज का वो काफी बढ़ चुका है, तो उसको लोग बेचने के लिए टाउन तक या नियर जो बड़ा विलेज है वहां के मार्केट तक जाते हैं, उसके लिए यूज हो रहा है। और आजकल ऐसे भी लोग गांव से बाहर आकर बाहर शहर में कुछ ना कुछ खरीदने जाते हैं, किसी ना किसी काम के लिए जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। तो ये सारी चीजों से ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो आवश्यकता ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ जाती है और ज्यादा लोग ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अब हमें देखना है कि इस पूरे चैप्टर में हमने इस चैप्टर की आपको समरी भी दी गई है। मैं आपको खुद ओन वर्ड्स में समराइज कर देती हूँ इस चैप्टर को, और आई होप अभी तक आपको चैप्टर समझ में आया होगा। जितनी भी स्टोरीज और एग्जाम्पल्स हैं बॉक्स के अंदर, उसको आप खुद से पढ़िए। अगर आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी आती है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं उसको डिस्कस करूंगी आपके साथ। और अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स में भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स, एक्टिविटीज, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस चैप्टर को एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने एक इमेजिनरी विलेज के बारे में पढ़ा जो कि विलेज बेस्ड है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जैसे विलेजेस होते हैं उनके ऊपर। इस विलेज का मेन ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ के लोगों का, कि वो लोग फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं। ज्यादा लोग इस विलेज में फार्मिंग करते हैं, और फार्मिंग में इस विलेज के फार्मिंग के टेक्निक्स में बहुत सारा चेंजेस आया है। 1960 के पहले वो ट्रेडिशनल मेथड था जैसे पुराने ज़माने में फार्मिंग होती थी, और 1960 के बाद उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के सारे वेज को अडॉप्ट कर लिया। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या है, क्या क्या वेज इंक्लूड किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन में, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। अब ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि जो फार्मर्स का जो लैंड फिक्स्ड था वो उस सेम लैंड से वो लोग काफी ज्यादा क्रॉप्स उगाने लगे, और जिससे उनके पास सरप्लस क्रॉप बहुत ज्यादा था, और जिसको वो लोग बेचने के लिए मार्केट में ले जा सकते थे और उससे पैसे कमाने लगे। लेकिन इन सारी चीजों से क्या हुआ, लैंड जो है वो अपनी फर्टिलिटी खोने लगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने की वजह से सॉइल पॉल्यूशन होने लगा, अंडरग्राउंड वाटर को ज्यादा यूज किया जाने लगा इरिगेशन के लिए, अंडरग्राउंड वाटर खत्म होने लगा, और अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड भी होने लगा केमिकल की वजह से। अब जो फार्मर्स हैं वो अपने पैसे कैसे अरेंज करते थे वो भी हमने देखा। स्मॉल फार्मर्स
लोन लेते थे, जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे वो अपने प्रीवियस ईयर्स के पैसे से नए फार्मिंग में उसको लगाते थे, उससे अपना कैपिटल बनाते थे और स्मॉल फार्मर्स को लोन भी करते थे। ठीक है, अब इसके बाद और लोग किस किस चीजों में इन्वॉल्व थे इस विलेज में? कुछ लोग डेयरी प्रोडक्शन में थे, कुछ लोग स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में थे, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, फिर कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में इन्वॉल्व थे। ठीक है, लेकिन अभी भी जो नॉन फार्मिंग सेक्टर है विलेज का वो ज्यादा डेवलप नहीं है, ज्यादा लोग फार्मिंग सेक्टर में ही इन्वॉल्व हैं। और फ्यूचर में क्या होना चाहिए कि फार्मिंग सेक्टर से ज्यादा लोग नॉन फार्मिंग सेक्टर पर डिपेंड करें, ताकि सभी लोग अच्छे से कमा सकें और अच्छे से रह सकें। और जो विलेज है उसका सिनारियो कैसा है, सेटिंग कैसा है, वो काफी अच्छा वेल डेवलप्ड विलेज है, रोड्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पे अच्छा है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करें और जो भी ये लेट्स डिस्कस वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करें, तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए अलग से उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा इस चैप्टर को समझने में। और आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी है इस चैप्टर को समझने में, कहीं पे भी कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछिए, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, थैंक यू।